Good morning, children. I hope you all are fine. I am happy to connect with you again with our chapter 9. Okay, it is your second session of this chapter. And what is the chapter name? Heracles and the Lion. So, student, it is a story about Heracles and the Lion. In the previous video, I have explained this chapter. So, student, read with me this chapter to improve your reading skill. Okay? So, student, open your book at page number 59 or look at your screen and read with me. Here is a story about lion and a man called Heracles. There was once a man called Heracles in Rome. His master treated him very badly. Heracles fled to a forest. Heracles was very hungry. It had been a tiring day and he looked around for food. Suddenly, a lion jumped out in front of him. Afraid, Heracles started running away from the lion. But what a surprise! The lion did not chase him. Heracles curiously walked back towards the lion. He saw that the lion's paw was bleeding. It was in pain. He found a long thorn stuck in the lion's paw. Heracles pulled the thorn out carefully. He then tore off a piece of clothes from his dress and then went to wash it near a stream. He then tied it around the wound. The lion licked his hand to thank him. Heracles and the lion became good friends. One day, the king's soldiers came into the forest and captured him. The king decided to punish him. स्टूडेंट, हमने इसमें कौन कौन से न्यू वर्ड्स सीखे? क्यूरियसली, ओके, और जो आपके लिए न्यू हैं, कैप्चर्ड, licked, carefully, found, thorn. So these words are new for you. Okay, suddenly, इनके मीनिंग मैं आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. Heracles was thrown into an open area called arena, which was filled with people of Rome who had come to watch the event. The king also came to watch it. So इसमें न्यू वर्ड्स कौन कौन से आए? कैप्चर, arena, okay. People saw a huge hungry lion let loose upon Heracles. He was very scared. To his surprise, the lion ran towards him and started to lick his hand. The people could not sit still or watch quietly. Heracles was greatly surprised. He realized it was the same lion he had saved, the one that became his friend. The king set Heracles and the lion free. After that day, Heracles and the lion became the best of friends.
They live together, helping each other. Now take the correct answer. Androcles and the lion became best friends because they were loyal to each other. Okay? लॉयल का मीनिंग क्या होता है? फेथफुल मीन्स वफादार या किसी के प्रति ईमानदार रहना, वफादार रहना. ओके, नाउ स्टूडेंट लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन टाइम एक्टिविटी. ओपन योर बुक एट पेज नंबर 62 or look at your screen. First I explain you activities. Okay, now student I have a question for you. This is look deep question 9.2. It says, from the lesson list the words those meanings you do not know. Ask your teacher what they mean. इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है कि आपको ऐसे वर्ड्स यहाँ पे राइट करना है जो चैप्टर में आए हैं जिनका मीनिंग आप नहीं जानते हैं. ओके, आप टीचर से आस्क कर सकते हैं, आप अपने किसी फ्रेंड से पूछ सकते हैं, या फिर आप डिक्शनरी की मदद से उनका मीनिंग ढूंढ सकते हैं. ओके, नाउ स्टूडेंट गो बैक टू द स्टोरी एंड फाइंड आउट द न्यू वर्ड्स एंड राइट हेयर. ओके, आई होप आपको ये क्लियर है और आप इस एक्टिविटी को करेंगे. आपको क्या करना है? चैप्टर में न्यू मीनिंग्स को ढूंढना है और उनको यहाँ पर राइट करना है. नाउ दिस इज योर क्वेश्चन टाइम एक्टिविटी. ओके, देयर आर 4 questions given. Yes, it is your 9.3 activity, question time activity. It says, let's read the instruction. Why was the lion in pain? जो lion था वो तकलीफ में या दर्द में क्यों था वो पैन में? So student think about it. क्या हुआ था जिसकी वजह से जो lion था वो बहुत पैन में था, दर्द में था या तकलीफ में था? Think about it student. क्या हुआ था? सोचिए, स्टोरी याद कीजिए. A long thorn was stuck in its paws. क्या हुआ था? एक बड़ा सा कांटा उसके पंजे में चुभ गया था या अटक गया था. Now second activity is, how did Androcles help the lion in the forest? Discuss. आपको ये क्वेश्चन ओनली डिस्कस करना है कि किस तरह से जो एंड्रिक्लेस था उसने लॉयन की हेल्प की थी. एंड्रिक्लेस ने लॉयन की जंगल में किस तरह से हेल्प की थी? क्या किया था उसने? एंड्रिक्लेस पुल्ड द थॉर्न आउट केयरफुली. ओके, क्या किया था उसने? उसके पेड़ से कांटा, पंजे से कांटा निकाला था. नाउ थर्ड एक्टिविटी. द किंग एंड द पीपल इन द ओपन एरिना वर सरप्राइज्ड बिकॉज. जो एरिना वाला एरिया था वहाँ पर जो लोग जमा थे और जो राजा था वो हैरान क्यों रह गया था? बिकॉज देयर आर 3 ऑप्शंस गिवन. फर्स्ट वन इज द लायन जम्प्ड ऑन एंड्रिक्लेस एंड एट हिम. क्या ऐसा हुआ था कि जो लायन था उसने एंड्रिक्लेस पर कूदा और एंड्रिक्लेस को खा गया? No, this is wrong. The lion licked his hand and the second is the lion ran back to its cage. So student think about it कि क्या हुआ था कि लोग देख करके हैरान रह गए थे. ऐसा क्या हुआ था वहाँ पर? The lion licked his hand कि lion ने उसे खाने के बदले या उस पर अटैक करने के बदले उसका हैंड को लिक करना स्टार्ट कर दिया था. Okay, now page number 63, question number 4. Fourth question is, think of 2 words similar in meanings to loyal. Ask a partner or your teacher. Loyal means क्या बताया था मैंने आपको? Faithful. Okay,
सो आपको टू वर्ड्स ऐसे जो कि इसके सिनोनिम्स होंगे, मीन्स इसके पर्यायवाची होंगे कि जिनका मीनिंग भी क्या होगा, वफादार होगा। आप हिंदी में पर्यायवाची पढ़ते हो कि एक ही क्या होते हैं सिनोनिम्स, मीन्स जो सिमिलर मीनिंग बताते हों। ओके, फॉर एग्जाम्पल फेथफुल और लॉयल मीन्स भी वफादार एंड फेथफुल मीन्स भी वफादार। तो ऐसे ही आपको इसमें लॉयल के टू सिनोनिम्स राइट करने हैं, यानी सिमिलर वर्ड्स लिखने हैं कि जिनका मीनिंग वफादार ही हो। सो फेथफुल का मीनिंग भी लॉयल होता है और लॉयल का मीनिंग फेथफुल एंड होता है डिवोटेड। ओके, सो स्टूडेंट आपको ये सर्च, मैंने आपको टू मीनिंग्स बता दिए, फेथफुल एंड डिवोटेड। अब आपको अगर आपको लॉयल के और सिनोनिम्स या सिमिलर वर्ड्स पता हैं तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी 9.4, दिस इज योर थिंक एंड इंक एक्टिविटी। लेट्स रीड द इंस्ट्रक्शन। इट सेज विच एनिमल्स आर नोन टू बी लॉयल, मीन्स ऐसे कौन से एनिमल हैं जिनको हम बहुत वफादार कहते हैं या उन्हें बहुत वफादार कहा जा सकता है। कौन कौन से होते हैं जिन्हें हम एज ए पेट रख सकते हैं, उन पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ओके, वर्क इन ग्रुप्स, रीड द शीट्स दैट योर टीचर गिव्स यू एंड डिस्कस, नेम टू एनिमल्स दैट आर लॉयल एंड गिव रीजंस फॉर योर चॉइसेस। सो स्टूडेंट आपको क्या करना है, यहाँ पर किसी एक एनिमल का नाम लिखना है जो आपको लगता है कि वो बहुत लॉयल होता है और आपको उसका रीज़न भी बताना है कि आपने उसी एनिमल को चूज़ क्यों किया। फॉर एग्ज़ाम्पल डॉग्स भी बहुत फेथफुल एनिमल या लॉयल माने जाते हैं। डॉग्स क्या कहा जाता है कि बहुत फेथफुल होते हैं, वफादार एनिमल होता है। सो अगर हम यहाँ पे डॉग के बारे में लिखते हैं तो आपको उसका रीज़न बताना पड़ेगा कि डॉग को ऐसा क्यों कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? डॉग हेल्प्स पीपल इन मैनी वेज। डॉग कई तरह से हमारी मदद करता है, हमारे घरों की रखवाली करता है। आपने देखा है जब कभी भी अगर अपन एज ए पेट डॉग रखते हैं और अगर कोई अननोन पर्सन हमारे घरों में आता है तो वो बहुत तेज़ बार्क करना स्टार्ट कर देता है। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि वो किसी भी अननोन पर्सन को आपके घर में एंट्री नहीं करने देता, ताकि आप, ये एक तरह से बहुत अच्छी चीज़ है कि हम किसी भी अननोन पर्सन से, कई बार ऐसा होता है कोई थीफ आ जाए या कोई चोर आ जाए तो उससे भी वो हेल्प करते हैं या बचाते हैं। जब वो बहुत तेज़ बाग करना स्टार्ट करेगा तो सब लोग अवेयर हो जाएंगे कि हाँ कोई अननोन है। तो इस तरह से जो डॉग होते हैं वो हेल्प करते हैं। डॉग्स हेल्प इन पीपल इन मैनी वेज, दे प्रोटेक्ट पीपल एंड हेल्प द पुलिस। और आपने देखा है जो पुलिसमैन्स होते हैं जो बहुत सारे केस स्टडी करते हैं, उनके पास बड़े बड़े से डॉग्स होते हैं जो क्रिमिनल का पता लगाते हैं। दैट इज़ वाई दे आर सेड टू बी मैन्स बेस्ट फ्रेंड। आपको पता है डॉग को मैन का बेस्ट फ्रेंड कहा जाता है इसीलिए। दे आर वेरी लॉयल टू देयर मास्टर्स एंड आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन पेट्स। सो मैंने आपको डॉग के बारे में बताया कि यहाँ पे अगर आप डॉग राइड करते हो तो आपको उसका रीज़न बताना पड़ेगा कि वो क्यों होता है। मैंने आपको हिंट दिए कि डॉग इस तरह से हेल्प करते हैं। डॉग्स हेल्प पीपल इन मैनी वेज, दे प्रोटेक्ट पीपल एंड हेल्प द पुलिस। दैट इज़ वाई दे आर सेड टू बी मैन्स बेस्ट फ्रेंड। दे आर वेरी लॉयल टू देयर मास्टर्स एंड आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन पेट्स। मोस्टली डॉग को ही एज ए पेट रखा जाता है, मतलब जो सबसे ज़्यादा कॉमन है ना पेट एनिमल में, वो डॉग ही है। नाउ पेज नंबर 64। नाउ सेकंड एनिमल आप क्या चूज़ करेंगे? बहुत सारे हैं, हॉर्स, कैट्स, कुछ भी आप चूज़ कर सकते हैं और आपको उसका रीज़न देना होगा कि क्यों उन्हें लॉयल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हॉर्सेस। Horses mostly live on farms. They are used for leisure activities, sports and working purpose. Horses can be trained, be performed in sports or do work. There are some jobs
horse do very well. For example, horses help the police in patrol duty. They are used in farming and to transport people from one place to another. In some countries, horses too are said to be loyal to humans. जो horse होता है उसे भी ह्यूमन के लिए फेथफुल कहा जा सकता है, क्योंकि वो भी कई तरह से हेल्प करता है. ओके आपने देखा है स्पोर्ट्स में कई बार हॉर्स राइडिंग होती है. ओके और जो ट्रेनिंग होती है उनमें भी हॉर्सेस का यूज़ किया जाता है. आप केट भी राइड कर सकते हैं. केट भी बहुत कॉमन पेट होती है जो कि लोग अक्सर एज ए पेट रखते हैं. दे आर जनरली स्मॉल एंड फरी. कैसी होती है केट? छोटी सी होती है, फरी सी होती है. दे आर ऑल्सो सेड टू बी लॉयल टू ह्यूमन्स. अगर हम केट को लव और अफेक्शन दिखाते हैं तो वो भी हमें लव एंड अफेक्शन दिखाती है. ओके सो स्टूडेंट, नाउ it's your turn to work on these activity. Don't forget to write today's date. Okay, आप इसको इन एक्टिविटीज़ को करने की ट्राई करना. बाकी आपको PDF में सेंड करती ही हूँ, लेकिन मैं आपको क्यों समझाती हूँ पहले से, ताकि आप लोग भी अपना माइंड यहाँ अप्लाई करें. आप भी इन क्वेश्चन पर, इन एक्टिविटीज़ पर क्या करें, फोकस करें कि किस तरह से हम इनका आंसर्स कर सकते हैं. सो स्टूडेंट, आप इसको करने का ट्राई करना. आई होप आपको ये सारी एक्टिविटीज़ क्लियर हैं. क्वेश्चन टाइम एक्टिविटीज़ नेक्स्ट वीडियो में हम अपने ग्रामर पार्ट पे मूव करेंगे. ओके मैं आपको ग्रामर पोर्शन एक्सप्लेन करूँगी.